Good morning, student. This is Monish Canolia. Once again, I am with the chapter French Revolution, class 9th. Now, today is the last time we are meeting. We are doing this session for this last session of this chapter, French Revolution. Okay, so we have completed till now 5 sections of this chapter. Now we are going to do the 5th one, abolition of slavery, revolution and everyday life. Only these 2 sections are left in this chapter. So how did abolition of slavery does, and what all sort of slavery was there in those time in France? We are going to discuss it. Okay. So one of the most revolutionary social reforms of the Jacobins regime was the abolition of slavery in French colonies. Like India was the colony of Britishers, England. In the same way, France was having various colonies in Caribbean. Do you know where is Caribbean islands? On the east coast of North America. There are various islands. Those are known as Caribbean Island. तो आपको पता है वेस्ट इंडीज जो इन क्रिकेट टीम है, that cricket team is also belong to Caribbean Islands only. Jamaican Islands, Caribbean Islands. या वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है वो वहीं से बिलोंग करती है. ओके. So Caribbean में Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as कौन से commodities वो supply करते थे? Tobacco, indigo, sugar and coffee. These 4 commodities they used to supply. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantations. So these islands, they used to produce these tobacco, indigo, sugar and coffee. But there were very less workers to work over there. Then whom to call? Because French people and Europeans did not willing to work there. वो काम नहीं करना चाहते थे वहाँ पे. वो कैरिबियन आइलैंड में जाकर के एज अ लेबर वर्क नहीं करना चाहते थे. तो फिर लेबर कहाँ से लाया जाए? जो लेबर्स की शॉर्टेज हो रही है उसको पूरा कैसे किया जाए? ये मन में एक डाउट था, एक समस्या क्रिएट हो गई थी कि वर्कर्स जो है डिस्टेंट वर्कर्स हैं जो कि यूरोप से, उनको वहां कैसे लेके जाया जाए क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. सो फाइनली एक ऑप्शन निकाला गया. सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास. जैसे द स्लेव ट्रेड began in 17th century. Right? French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast. Merchant who went to do business, जो परचेज करने जाते थे, प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे और उसको सेल किया करते थे, वो मर्चेंट जा करके, वो मर्चेंट कहां से आते थे? फ्रॉम द फ्रांस. कौन सी जगह से? दे वर फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स, नैंटेस, ओके, टू द अफ्रीकन कोस्ट जा करके वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, जो लोकल ट्राइब्स के जो अ सॉर्ट ऑफ किंग होते हैं, जो लीडर होता है, उससे स्लेव्स लेते, ब्रांडेड एंड शैकल्ड, उसको स्टैंप लगा दिया जाता और शैकल्ड कर दिया जाता. शैकल्ड मीन्स बेड़ियों में बांध दिया जाता. उन किसको?
To whom? To the laborers, to the slaves. As a slave they are going to work. And the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. Oh my God, this is very ridiculous. कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग नहीं समझा जा रहा था उस वक्त. दे वर द स्लेव्स. उनको 3 महीनों तक लॉन्ग, 3 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, उनको पैक कर दिया जाता. पहला उनको बेड़ियों में बांध दिया जाता. दे वर शेकल्ड. उसके बाद 3 महीने तक उनको टाइटली पैक कर दिया जाता ताकि वो कहीं ना कहीं इधर इधर मूव ना कर सके. अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. They were sold to the plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar की जो मार्केट थी यूरोप की, शुगर, कॉफी, इंडिगो, ये सब डिमांड कहां से पूरी होती? ये सब डिमांड कैरिबियन आइलैंड से पूरी होती. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो Bordeaux and Nantes जो थे वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अपने उनके लाइफ में जो भी फ्लरिशमेंट हो रहा था, जो भी उनके लाइफ में गुड हो रहा था, इकोनॉमिक लेवल उनका इंक्रीज हो रहा था, वो टोटली डिपेंड किस पे था? ऑन स्लेव ट्रेड. क्योंकि दे वर टोटली वर्किंग इन स्लेव ट्रेडिंग. वहां से मर्चेंट जाते, बॉर्डेक्स एंड नंटे से मर्चेंट जाते, अफ्रीका से स्लेव्स लेते, उनको शेकल्ड करते, बेड़ियों में बांधते और ले जा करके उनको कैरिबियन आइलैंड में ले जा करके उनसे काम कराया जाता. इस तरह का स्लेव ट्रेड. और काम कराया जाता नहीं, उनको सेल आउट कर दिया जाता और उससे जो इनकम आ रही थी उससे नैंटेस एंड बॉर्डेक्स जो कि फ्रांस के ही कुछ सिटीज हैं, वो उनकी लाइफ में फ्लरिशमेंट आ रहा था, उनकी लाइफ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा था. सो थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery. In France, the National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws fearing opposition from the businessmen whose income depended on the slave trade. ये बहुत बड़ी समस्या है कि नेशनल असेंबली में डिबेट्स चल रही थी बार बार कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, पर वो लॉ पास नहीं कर पा रहे थे अपोजिशन के फियर में, क्योंकि अपोजिशन में जो बिजनेसमैन हैं उनकी सारी की सारी इनकम किस पे डिपेंडेंट है? स्लेव ट्रेड पे. इस वजह से दे वर नॉट एबल टू डील और दे वर नॉट एबल टू पास अ लॉ अगेंस्ट स्लेवरी. स्लेवरी को खत्म करने के लिए लॉ पास नहीं कर पा रहे थे. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. तो एक कन्वेंशन निकाला गया 1794 में जो कि सभी स्लेव्स को फ्री करने के लिए निकाला गया ताकि जो भी उनको पजेस करते हैं, उनको रखते हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाए. ये कब निकाला गया? 1794 में. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Napoleon Bonaparte, he again introduced slavery after 10 years. The plantation owners understood their freedom as including the right to enslave. तो प्लांटेशन ओनर्स थे जो भी प्लांट कर रहे थे, जो उनकी राइट है. प्लांटेशन ओनर्स
understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of the economic interest, slavery was finally abolished in French colonies in 1848. अफ्रीकन निग्रोज जो थे, कौन थे अफ्रीकन निग्रोज? जो कि बहुत अच्छी उनकी हाइट होती है, दे इन स्ट्रेंथ वाइज दे आर मोस्ट पावरफुल, उनसे फिजिकल वर्क आप कितना भी करा सकते हो, ओके। सो इसलिए उन्हीं लोगों से एज अ स्लेव वर्क कराया जाता था। तो फाइनली स्लेवरी कब अबॉलिश हुई? लॉ पास किया गया था 1794 में, फिर जा करके अराउंड 54 इयर्स के बाद 1848 में स्लेवरी अबॉलिश हुई, ओके। तब जाके स्लेवरी अबॉलिश हो गई। डेफिनेशन देख लो फटाफट से। Negroes, a term used for the indigenous people of Africa south of Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. Emancipation. What does emancipation mean? The act of freeing. Okay. So this is the fifth we have completed. Now sixth. Fifth, we have understood the abolition of slavery. Now we are going to do the revolution and everyday life. How revolution occurs in France during the time of Napoleon. So let us see, can politics change the clothes people wear, language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass the laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो भी थी, जो भी पीपल जो वर्क कर रहे थे, उन सब ने लॉ पास किए ताकि आइडियल्स जो थे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ फ्रांस, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, ताकि एवरीडे लाइफ में आ सके, हर कोई लिबर्टी को जी सके, हर कोई इक्वलिटी को जी सके, उनका मकसद यही था। तो वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship. तो जो important law that came into effect soon, कौन सा? Storming of the Bastille in summer 1789 was abolition of censorship. Censorship क्या होता है? सेंसरशिप होता है किसी विदेश में अगर सेंसरशिप लॉ लाया जाता है, दैट मीन्स कुछ भी अगर पास करना है, कुछ भी अगर दिखाना है, तो दैट हैज टू बी पास्ड बाय अ पर्टिकुलर बॉडी। हमारे यहाँ पे भी मूवीज के लिए सेंसरशिप है या नहीं है? अगर कोई भी मूवी हमारे देश में बनती है तो सेंसर बोर्ड उसे देखता है उसे, और कुछ सीन अगर सेंसर बोर्ड को अगर पसंद नहीं आते हैं तो उसे हटा दिया जाता है, उस पर्टिकुलर सीन को। अगर पूरी ही मूवी सेंसरशिप को पसंद नहीं आती है तो पूरी ही पूरी मूवी बैन हो सकती है। तो सेंसरशिप का यह काम होता है। So in the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by censors of the kings. तो फ्रांस में सेंसरशिप लागू करने वाले कौन होते थे? किंग, और वो बोर्ड जो होता था वो किंग के ही मेंबर्स होते थे, जो कि कौन सा न्यूज़पेपर या प्लेस या कुछ भी परफॉर्म करना है या ना करना है, फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी, तभी वो आगे पास हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ natural right. Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. तो न्यूज़पेपर्स,
पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, जो भी था वो ऑल ओवर फ्रांस में फैल जाता, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंच जाता। उसमें वो क्या डिस्कस करते, दे ऑल डिस्क्राइब, जैसे हमारे देश में भी अगर बात करें, जैसे केसरी न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़पेपर उस टाइम थे, हमारे देश में भी पैम्पलेट्स बांटे जाते थे। हमारे देश में भी बहुत से फेस्टिवल्स इसलिए ही मनाए जाते थे ताकि उसमें पैम्पलेट्स बांटे जा सके। उस फेस्टिवल के सहारे, उस फेस्टिवल के आड़ में हमारे बड़े बड़े लीडर्स आकर के मिलते थे, कम्युनिकेट करते थे और एक बड़ा कुछ करना है आगे फ्यूचर में जाकर के उसकी तैयारी करते थे। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, मीटिंग्स, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश की भी आज़ादी में। उसी तरफ दूसरी तरफ फ्रांस में भी न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इन सब ने भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of press also means that opposing views of events could be expressed. Freedom of press भी दे दी गई। बिल्कुल एग्जाम्पल, हमारे देश में, भारत में कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है अगर कोई भी गवर्नमेंट लोगों के अनुसार नहीं चल रही है तो एनीवन कैन बी क्रिटिसाइज्ड because there is a freedom of press. Okay, तो it's a right in India. हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम का है, उसमें इंक्लूसिव है कहीं ना कहीं, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिव है, लिखा हुआ नहीं कहीं पर वो इंक्लूडेड है। सो ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs and festive procession attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. तो इस तरह के जो भी पैम्पलेट्स होते या न्यूज़पेपर होते, जो भी ये थॉट थे, लिबर्टी के थॉट, जस्टिस के थॉट, वो कौन रीड कर पाता? ओनली अ पर्टिकुलर रीडर्स, जो एडुकेटेड होते वो ही पढ़ पाते, उनके अलावा कोई और नहीं पढ़ पाता। So in conclusion, उससे पहले लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सब पूरे माहौल में फैल चुकी है। हर कोई लिबर्टी चाह रहा था जो उनको मिल चुकी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल चुकी है, स्लेवरी से आज़ादी उनको मिल चुकी है, कोई अब स्लेव नहीं रहेगा, सब कुछ फ्रीडम मिलने लग गई है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, मोनार्की ख़त्म हो चुकी है फ्रांस में, जो भी ड्रॉबैक थे वो सब हटा दिए जा चुके हैं। हमारे देश में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, प्रीएम्बल में डाला गया है, वो कहाँ से लिए हैं? सब हमने फ्रांस से ही लिए हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारे लिबर्टी, इक्वलिटी, ये वर्ड्स हमने, फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स प्रीएम्बल में जो लिखे हुए हैं, एक बार प्रीएम्बल भी पढ़ करके देखना, जो हमने प्रीएम्बल में शब्द डाले हैं वो सारे के सारे हमने फ्रांस से ही लिए हैं। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, अपने आप को क्राउन कर लिया, फ्रांस का राजा बन गया, एम्परर ऑफ फ्रांस बन गया। ओके, ही सेट आउट टू बी ए कॉन्करर neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family.
तो आसपास के देशों में जहाँ पर भी उसे लगता जिसकी उसकी टेरिटरी बन गई है, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को उठा करके उन्हें वहाँ डाल देता। कहाँ डाल देता? पर्टिकुलर जो भी कंट्री है, फ्रांस के अलावा आसपास की उनकी कंट्रीज का हेड बना देता अपने ही फैमिली मेंबर्स को। तो नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, अपने आप को मॉडर्नाइजर को कहता था। हाँ, कुछ हद तक है भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या, हाउ ही बिकेम या प्लेड अ रोल टू बी अ मॉडर्नाइजर इन यूरोप, मॉडर्नाइजर इन फ्रांस। तो क्या क्या उन्होंने किया बीइंग एज अ मॉडर्नाइजर, वो भी हमें देखना होगा। Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of weights and measure provided by the decimal system. क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? बहुत से लॉज बनाए गए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट्स के लिए वेट्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया, पर्टिकुलर कौन कौन से कितने कितने वेट्स जो इंट्रोड्यूस किए नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किए। फिर डेसिमल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। तो नेपोलियन कौन थे? उनको ही नेपोलियन एज अ लिबरेटर समझा जा रहा था, क्योंकि लोगों को आज़ादी दिला सकता था, फ्रीडम दिला सकता था। पर आगे चल करके क्या हुआ वो देखते हैं। Soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. कहीं भी जा करके इन्वेड कर लेते, कहीं भी घुस जाते किसी की टेरिटरी में। He was finally defeated at Waterloo in 1815. 1815 में वाटरलू की फाइट में फाइनली ही लॉस्ट। हु लॉस्ट? नेपोलियन बोनापार्ट लॉस्ट। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. बिल्कुल उनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, वो आगे तक भी चलते रहे, लोगों तक पहुँचे। नॉट ओनली इन फ्रांस, ऑल ओवर वर्ल्ड लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे शब्द हर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, याद रखना ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, तो आइडियाज ऑफ लिबर्टी की आइडियाज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स were the most important legacy of French Revolution. These spread from France to the rest Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state बना। सॉवरेन स्टेट कौन सा होता है? सॉवरेन स्टेट वो स्टेट होता है जिस स्टेट में, एग्जाम्पल इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, तो इंडिया की सॉवरेन कंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनते हैं उसका किसी और देश उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वी हैव सोल राइट टू मेक एनी लॉ, नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स। वो हमारे खुद के ही हैं। एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारा खुद का राइट है, हमारे खुद का प्लेस है।
इसमें कोई और कंट्री दखल अंदाजी नहीं दे सकता बिना हमारी परमिशन के। हम जब कहेंगे तो ज़रूर दे सकता है, जब तक हम ना कहें, हम जब तक ना इन्वॉल्व करें किसी और देश को, तब तक वो कंट्री इन्वॉल्व नहीं हो सकता, राइट। बिकॉज दिस जम्मू एंड कश्मीर इज़ आर इंटरनल अफेयर, हमारा राइट है, हम सॉवरेन कंट्री है, इसलिए कोई और देश दखल अंदाजी नहीं कर सकता, राइट। So Sultan Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded the ideas coming from revolutionary France से ही ideas उन्होंने लिए थे। राजा राम मोहन रॉय थोड़ा देख लेते हैं हम। राजा राम मोहन रॉय was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. He could think and talk of nothing else when he heard of July Revolution in France in 1830. On visiting frigates, warships flying the temporary limbed by an ancient. तो जो आइडियाज पूरे फ्रांस से फ्लो हो रहे थे, राजा राम मोहन रॉय भी बहुत इंस्पायर हुए इक्वालिटी एंड लिबर्टी से, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पर भी किसी और देश के अंदर गुलामी में थे नहीं थे उस वक्त। तो राजा राम मोहन रॉय भी इंस्पायर हुए फ्रांस के कुछ टर्म से, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे टर्म से। So finally we have completed this chapter. मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, वो वर्कशीट आपको करनी है और फटाफट से मुझे भेजनी है। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगे ये इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो आपके और स्कूल में कोई अगर फ्रेंड्स हैं जिनका आप चाहते हो उनका भी भला हो, तो उनको ये चैप्टर शेयर कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। हमको आगे बढ़ना है तो हमारा खुद का भला नहीं, सबका भला करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको वर्कशीट भेजूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, मुझे भेजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।